So we are discussing about the programming tools that we use for data science. We have discussed about matplotlib. Today we are going to discuss about NumPy. So NumPy is also a package in Python, okay, which is specifically used to work with the arrays. Actually, it is a C extension library. Okay. As you might be aware that in Python language, you can also use the capabilities of C and C++ languages also along with Python to enhance its capabilities and functions. So NumPy is the library which provides numerical capabilities specifically with the working of arrays. Because arrays are not supported in Python, but with the help of NumPy library, you can use the capability of arrays into Python. So it also has the functions for working in the domain of linear algebra, Fourier transformation and matrices. ठीक है, कह रहे हैं जो साइंटिफिक जो टूल्स होते हैं, जो साइंटिफिक जो एल्गोरिथम्स जो होती है, जो आप यूज करते हो इन द मैथमेटिक्स, वो एल्गोरिथम्स, वो फंक्शंस आप यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर विद द हेल्प ऑफ NumPy library or package. So it was created in 2005 by Travis Oliphant. Okay, it is open source project. That means the source is available to you and you can have access to it at any time, and you can use it freely. That means it is available free of cost. ठीक है जी. Then what it says, what are its key features of the NumPy library? That it is highly efficient in array oriented computing because it provides the capabilities of using arrays. So it is highly efficient in using the mathematical formulations in Python. Then in memory means it is highly efficient in memory utilization. That means it uses very less space for storage of the data variables. Okay. Then it is contiguous in nature. That means it provides strided, means one after the another, sequential arrangement of the data. Then homogeneous, you all are very well aware, arrays are data structures that are specifically designed to hold the data of similar kind of nature. But if we are talking about the homogeneity in NumPy, then it will maintain the homogeneity, but it can have the values that are algebraic in form. यानी जो algebraic जो values है वो भी ये क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है. जो जनरल अगर आप C++ की बात करें तो वहां पे जो arrays होते थे उसके अंदर आप algebraic values नहीं स्टोर कर सकते, इसके अंदर आप वो कर सकते हैं. Then NumPy is suited to apply to many applications. Apply to many applications. Specifically image processing. इमेजेस को प्रोसेसिंग करने के लिए आज भी पता है आपको, ईच एंड एवरी फील्ड जो भी मोस्ट ट्रेमेंडस इन नेचर है, जैसे कि आपका मेडिकल फील्ड है, एग्रीकल्चर है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है या कोई और है, ठीक है, उसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग इज द मेन कंसेप्ट, इज द मेन एस्पेक्ट, जहाँ पे आप क्या करते हैं, इमेजेस को प्रोसेस करके आप क्या करते हो, उनको प्रोसेस करते हो उनको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए. जैसे कि आपने देखा सुना भी होगा, दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक जो सिग्नल्स है, जो ट्रैफिक जो है वहां पे जगह जगह पे कैमराज लगाए हुए हैं, ट्रैफिक कैमराज. वो क्या करते हैं, दे कैप्चर द व्हीकल व्हिच इज रनिंग आउट ऑफ द ऑर्डर, दैट मींस व्हिच इज नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स. तो वो क्या करते हैं, दे कैप्चर सच काइंड ऑफ डिवाइस और उसको क्या कर देते हैं, दे जस्ट मेक सम पेनल्टीज इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज और सम अदर. ठीक है, तो दैट इज अ पर्टिकुलर सिनेरियो ऑफ इमेज प्रोसेसिंग जहाँ पे इट इज हाईली रिक्वायर्ड. तो वो इमेज प्रोसेसिंग के अगर आपको करने तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ NumPy. सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल्स की प्रोसेसिंग के लिए लीनियर अलजेब्रा, जो भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म करना चाहते हो वो सब आप इसके थ्रू
कर सकते हैं, एंड वेरियस अदर्स। इसने डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है, आपने सिंपल एक एरे की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। एक एरे एलिमेंट है, कोई भी एक एरे एलिमेंट सिंगल एलिमेंट ऑफ डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप होगा उसका ये क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है। ये अदर एलिमेंट मींस ऑल आर ऑफ द सेम काइंड ऑफ सेम डेटा टाइप। देन इट सेज numpy is the foundation of the python scientific stack। जो पाइथन जो लैंग्वेज है उसका जो पूरा एक पूल है जिसके अंदर वेरियस साइंटिफिक टूल्स दैट आर एक्टिंग ऑन फॉर वेरियस फंक्शंस एंड ऑपरेशंस। तो उसके अंदर जो numpy है दैट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, दैट इज द की फाउंडेशन ऑफ यूजिंग द साइंटिफिक टूल्स। ठीक है जी, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, this is the numpy ecosystem where various scientific tools like OpenCV, spatial analysis library, numerical expression, AstroPy, PyTables, stats models, BioPython, scikit-image, scikit-learn, NumBA, SciPy, Pandas, Matplotlib. These are various scientific libraries that you use for various scientific calculations related to particular task। ठीक है जी। और उसके बाद क्या सबसे बेस में क्या है इसका, numpy, that is the basic building block for all the these scientific tools। यानी कि जो बाकी जितने भी टूल्स दिखाए हुए हैं आपके, इन सभी को यूज करने के लिए यू हैव टू इंक्लूड द numpy into your application। तो numpy बेसिकली क्या है, numpy स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है आपको फंक्शनैलिटीज दैट आर रिलेटेड टू मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस। तो मैथमेटिक फॉर्मुलेशन है जो न्यूमेरिकल जो डेटा है उसके ऊपर एनालिसिस मैनिपुलेशंस अप्लाई करने के लिए क्या करता है, वेरियस ऑपरेशंस फंक्शंस टूल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, स्पेसिफिकली ऑन एरेज एंड मैट्रिसेस। ठीक है जी। लेकिन जो साइपाई है वो क्या करता है, इस numpy की कैपेबिलिटीज को इनहेंस करता है। दैट इज आल्सो ए मॉड्यूल साइपाई व्हिच प्रोवाइड्स एडिशनल कैपेबिलिटीज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेशंस। जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस जो numpy करता है दैट इट डज विद द हेल्प ऑफ SciPy। लाइक आप ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस है या वो जितने भी मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम्स है, आपके रिग्रेशन है या अदर मैथमेटिकल जो स्पेसिफिक टूल्स है, चाहे वो आपका कोई पाइथागोरस थ्योरम है या कोई आपका कोई अदर जो भी मैथमेटिकल टूल्स हैं दैट आर रिलेटेड टू साइंटिफिकली एप्लीकेशंस, तो वहां पे क्या यूज करता है, SciPy मॉड्यूल इज यूज्ड along with the numpy। And there is an array shape। Array shape, you very well aware about the array shape that whether it is one dimensional, it is two dimensional, or it is three dimensional। तो उसकी जो शेप जो है उसको आइडेंटिफाई करने के, उसको डिफाइन करने के लिए क्या यूज करता है, ये एक शेप वेरिएबल को यूज करता है, शेप को, जिसके अंदर क्या करता है, इफ द array इज वन डायमेंशनल तो उसके अंदर क्या करता है, ये एक सिंगल टपल यूज करता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम इट इज शेप and it uses 9। 9 is the number of elements into the particular array because it is one dimensional array। तो इसके अंदर rows and columns तो होते नहीं है। ठीक है, तो it uses only single variable to denote its shape। Then if we talk about the two dimensional arrays, then it uses two tuples, shape 3, 5। 3 is the number of rows and 5 is the number of columns in two dimensional array। If we talk about the three dimensional array, then one more tuple is added, shape 3, 5, 4। 3 is the number of rows, 5 is the number of columns and 4 is the dimensionality। ठीक है जी, एंड सो ऑन, इस तरीके से क्या होता है, ये बढ़ता चला जाता है। एरे एलिमेंट टाइप, एरे एलिमेंट टाइप का आपको पता है कि इट यूजेस ए सिंगल डेटा टाइप। डेटा टाइप जो भी एलिमेंट होते हैं एरे के अंदर वो एक सिंगल टाइप के होते हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो टाइप ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस करते हैं हम डॉट डी टाइप एट्रीब्यूट के हेल्प से, डॉट डी टाइप। ठीक है जी, तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं डी टाइप के, तो क्या है, डी टाइप डॉट बाइट ऑर्डर, बिग और लिटिल एंडियन। अगर बिग है या लिटिल उसका जो ऑर्डर है डेटा टाइप का,
उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। डी टाइप डॉट आइटम साइज, एलिमेंट का साइज कितना है उस पर्टिकुलर डाटा टाइप का, ठीक है जी। डी टाइप डॉट नेम, व्हाट इज द नेम फॉर दैट पर्टिकुलर डाटा टाइप ऑब्जेक्ट। डी टाइप डॉट टाइप, व्हाट इज द टाइप ऑब्जेक्ट यूज्ड टू क्रिएट स्केलर्स, जो उसके एलिमेंट्स जो आप क्रिएट कर रहे हो अरे के अंदर, उसका जो टाइप ऑब्जेक्ट है वो क्या यूज हो रहा है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आप एरे के अंदर आप यूज करते हो उसके डी टाइप ऑब्जेक्ट के साथ। देन यूनिवर्सल फंक्शन, there are some universal functions that operate element wise on one or more arrays. That means आप एक सिंगल एरे के ऊपर या मल्टीपल एरेज के ऊपर कुछ ऐसे यूनिवर्सल फंक्शंस हैं जो क्या होते हैं, यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं, चाहे वो वेदर इट इज ए सिंगल डायमेंशनल एरे, वेदर इट इज ए टू डायमेंशनल एरे, वेदर इट इज ए मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है जी। तो होते हैं यूनिवर्सल फंक्शंस, उसको होते हैं यूएन फंक्स, यू फंक्स आपके पाइथन के अंदर, नमपाई मॉड्यूल के अंदर। तो जो ये यूनिवर्सल फंक्शंस हैं, ये दीज आर ऑप्टिमाइज्ड सी इनर लूप्स बेस्ड ऑन एरे डाटा टाइप। तो ये जो जो आपके जो सी लैंग्वेज के अंदर जो लूप्स होते थे, इनर लूप्स, ठीक है जी, उसके बेस उनके बेसिस के ऊपर ये आते हैं यूनिवर्सल फंक्शंस होते हैं जो ऑपरेट करते हैं आपके एरेज के ऊपर, ठीक है जी। देन comes numpy has some built-in functions also, ठीक है जी। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं numpy के अंदर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं आपके, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है जी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, रेसिप्रोकल, स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल आपके जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, लोगरिथमिक, पावर है या स्क्वायर रूट है, वो सारे क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं आपके इसके अंदर, साइन कोस टेन। हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं साइन एच, कोस एच, टेन एच, ठीक है जी। बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर आप लेफ्ट शिफ्ट होता है या राइट शिफ्ट होता है या पावर, ये पावर का होता है, ठीक है, कंपैरिजन का होता है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं आपके जिसके अंदर एंड है, और है, नोर है, एक्सोर है, ठीक है। फिर कहते हैं प्रिडिकेट्स होते हैं आपके, फाइनाइट है या कोई नॉन फाइनाइट है, या कोई बिट ऑपरेटर आपने यूज कर, बिट ऑपरेटर आप यूज कर इसके अंदर, इस तरीके से। या अदर जितने भी आपके मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, चाहे कोई एब्सोल्यूट है, सीलिंग है, फ्लोर है, मोड है, ठीक है, राउंड है, दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस दैट यू गेट इनटू द numpy to be used for your particular application, ठीक है जी। then comes broadcasting. ब्रॉडकास्टिंग इज द की फीचर ऑफ numpy. numpy के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ब्रॉडकास्टिंग। इसके अंदर क्या होता है, आज जब भी आप कोई सपोज कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हो आप मैट्रिसेस के ऊपर, या डायमेंशनल एरेज के, वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल एरे है, एरे के ऊपर जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो एरे के ऊपर, टू एरेज पे, तो दोनों क्या होने चाहिए, ऑफ सिमिलर नेचर होने चाहिए, जिनके जो डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो, इफ द डायमेंशनलिटी मिसमैच, तो वहां पे क्या होता है, देयर कम्स एरर। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको numpy के अंदर एरर नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रॉडकास्टिंग फीचर है जो क्या करती है, जो कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड करती है बिटवीन द डिफरेंट शेप्स ऑफ द एरेज। ये एरे अगर आपका वन डायमेंशन, एक एरे वन डायमेंशनल, एक टू डायमेंशनल है, तो उसको क्या कराएगा, वो उसको मैप करवा देता है उसके अंदर, ठीक है जी। यानी उसके अंदर जो जो जिसका मिनिमम जो शेप होती है, उस शेप को क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है टू द हायर वन। कैसे, तो कोई भी दो एरेज होंगे वो कंपेटिबल कब होंगे, जब या तो वो दोनों के डायमेंशन क्या हो, इक्वल हो, या क्या हो, वन ऑफ देम इज वन। या तो दोनों के डायमेंशन इक्वल हो, या दोनों में से एक का डायमेंशन क्या हो, वन हो, तब वो क्या होंगे, दोनों कंपेटिबल होते हैं। और अगर कंडीशंस मैच नहीं होती हैं इन दोनों में से, तो क्या होता है, वहां पे एरर शो होता है।
तो जो रिजल्टिंग एरे होता है उसका साइज क्या होता है, इज द मैक्सिमम साइज, यानी कि हमें क्या बताया, जो हायर जो डायमेंशन जिस एरे का है वो डायमेंशन क्या होगा, रिजल्टिंग एरे का होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एरे ए है और एक एरे सी है। तो सी के अंदर हम क्या करें, सी इज इक्वल टू A+10, ए कोई एरे है उसके अंदर हम 10 वैल्यू क्या कर रहे हैं, ऐड करने लग रहे हैं। तो हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, 10 ऐड करने लग रहे हैं। और एरे हमारा क्या है, जिसकी शेप क्या है 5, एरे की शेप क्या है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो 10 जो वैल्यू जो स्केलर वैल्यू जो आप ऐड कर रहे हो इसके अंदर, ये क्या हो जाएगी, ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगी थ्रू आउट द होल ऑफ द एरे विद हायर डायमेंशन। तो ये जो एरे है ये 5 एलिमेंट्स थे इसके, तो 10 क्या होगा, 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। और सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे उसके अंदर, 10 के अंदर ऐड हो जाएंगे। यानी जितने भी एलिमेंट होंगे वो 10 के अंदर ऐड होंगे, 0 10 10 11 12 13 14, इस तरीके से वैल्यू क्या होती है, ब्रॉडकास्ट होते हैं डायमेंशन। ठीक है, अनदर एग्जांपल यू कैन सी, यहाँ पे एक एरे ए दिया हुआ है, एक एरे बी दिया हुआ है जिसके अंदर वैल्यूज है 10 20 30। ठीक है जी, ये एरे एक है 3/2 का डायमेंशन, और इसका है 3/1 का डायमेंशन, जिसके अंदर 3 रोज 2 कॉलम्स और इसके अंदर 3 रोज 1 कॉलम है। लेकिन ये क्या करेगा, जब हमने C इज इक्वल टू A+B किया तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 1 मोर कॉलम विल बी एडेड टू द एरे B। यानी उसने क्या कर दिया, जो उसके डायमेंशनलिटी थी उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया टू मैच विद द अनदर एरे। ठीक है जी, तो क्या होगा, रिजल्ट फिर क्या आ जाएगा, रिजल्ट विल बी द वैल्यूज एडेड टू ईच एंड एवरी वैल्यू इनटू द एरे। तो 0+10 0+10, ये यहाँ पे 10 आएगा, ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 11 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, 34 35। ठीक है जी, तो इस तरीके से वैल्यूज क्या हो रही है, ब्रॉडकास्ट हो जाती है आपकी। ठीक है जी, दिस इज द ब्रॉडकास्ट फंक्शनैलिटी इन नमपाई, जो क्या करता है, जो अगर आपके मिसमैच होती है शेप ऑफ द एरे या जो डायमेंशनलिटी ऑफ द एरे हम बोल रहे हैं, तो वहां पे उस डायमेंशनलिटी को क्या करवाता है, ये मैच करवाता है एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, ताकि कोई एरर ना आए। दिस आर द जनरल ब्रॉडकास्टिंग रूल्स। हमने पहले ही बताया, या तो डायमेंशन दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, उनमें से एक एरे जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे, मैच होंगे। तो अगर एक एरे 1 डायमेंशनल है और दूसरा एरे 2 डायमेंशनल, तो रिजल्टिंग एरे क्या होगा, वो 2 डायमेंशनल आएगा। यानी कि फर्स्ट एरे मान लो 3 डायमेंशन का, सेकंड एरे 2/3 है, तो रिजल्ट क्या होगा, 2/3 एरे। दूसरे केस में क्या है, अगर एक सेकंड डायमेंशनल एरे है 6/1 का, एक थर्ड डायमेंशनल एरे है 1/6/4 का, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 1/6/4। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर एक 4 डायमेंशनल एरे 3:1:6:1 और एक थर्ड डायमेंशनल एरे है 2:1:4, तो रिजल्टेंट जो एरे होगा वो क्या होगा, 4 डायमेंशनल एरे होगा, जिसके अंदर क्या होंगे 3:2:6:4। यानी कि ये क्या करेगा, ये 4D एरे में से लेगा, 2 क्या लेगा 3D एरे में से, फिर ये 6 4D एरे में से लेगा, और 4 वैल्यू क्या लेगा 3D एरे में से। यानी कि हमने क्या बताया था, जो हायर जो वैल्यू होगी जिस भी एरे के अंदर, दैट वैल्यू विल बी द शेप ऑफ द रिजल्टिंग एरे इन एनी ऑपरेशन। ठीक है जी, तो वही सब इसके अंदर बताया है। These are some other sub packages that are included into the NumPy. That is numpy.fft. That is fast Fourier transformation. अगर fast Fourier transformation से related आपको ऑपरेशन करने हैं तो ये सब पैकेज आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। numpy.polynomial, efficient polynomials, अगर आपको कोई polynomial से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको इस पैकेज को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। numpy.linear algebra, linalg, लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड अगर कोई ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं तो वो क्या करेगा, वो इस सब पैकेज को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। numpy.math, ये अगर स्टैंडर्ड जो मैथमेटिकल फंक्शंस है उसको उनको परफॉर्म करना है तो numpy.math आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। numpy.random, अगर रैंडम नंबर जनरेशन का कोई फंक्शन यूज करना है आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पे numpy.random आपको पैकेज क्या करना पड़ेगा,
इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन।